So hello everyone, welcome back. So this video going to be a very special for upcoming ninth graders where I'll be giving you the answers of the most asked questions and the tips and tricks. And guys, without further ado, let's get into the video. And अगर तुम्हें वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो make sure to like the video and if you're new to my channel subscribe करना and अपने दोस्तों को शेयर करना. So let's. And I'll be also providing you the most important tips and tricks that helped me in my 9th grade. So I hope कि तुम लोग ये वीडियो Firstly, we're gonna answer the questions of the subscribers. So the first question is asked by @Adita's Amazing World, and her question is that Neve or Abhay batch to take in class 9. So according to me, that you should take any batch whatever you want. Actually the most important thing is that जिसे तुम्हें सबसे ज़्यादा समझ में आता हो, जिनके टीचर्स तुम्हें अच्छे से समझ में आते हो कि उनका टीचिंग स्टाइल तुम्हारे लर्निंग स्टाइल से बहुत सिमिलर है, तुम वो अगर वो पढ़ाते हैं तो तुमको उनकी बातें समझ में आ जाती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो वो बैच लो. जिस बैच में वो टीचर्स तुमको मिले वो बैच लो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी क्लास 9 में अभय बैच लिया था रिवीजन के लिए. क्यों लिया था मैंने? क्योंकि मुझे उनके टीचिंग स्टाइल्स बहुत अच्छे लगे थे. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड बैच, सो द मोस्ट चीपेस्ट थिंग यू कैन गेट इज़ दैट आजकल यूट्यूब पर ही इतना फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है कि तुमको बैच लेने की कोई भी नेसेसिटी नहीं है. बट इफ़ यू वांट टू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी एंड डेवलप रूटीन, देन यू माइट गो फॉर द suitable batches according to you. And now the next question she has asked is that which publication should we use for question bank and sample paper. So basically you can use any brand क्योंकि सारे brands के question papers question bank और sample paper अच्छे होते हैं. But if you will follow my, तो I would suggest that you should take question bank of Oswal, and for sample papers you can go with Educard or PW because I have already purchased PW sample papers and question bank of Oswal. And if you want the reason why am I suggesting to you is that basically in Oswal every type of questions you will get, like for very short, long and all type of questions you all will get. And also competency based भी questions आते हैं. एंड PW के सैम्पल पेपर्स थोड़े उनका लेवल जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है. उसमें आपको टफ़ से टफ़ चीज़ें मिलेंगी एंड ईजी से ईजी चीज़ें मिलेंगी. सो yeah, that was my answer to you. I hope you get it, and now you will decide that what you have to do. Okay, so now let's see that what another person has asked. So this question is asked by @LittleCupid. Actually she has asked that my question is how to stay consistent and how to stay away from distractions. So if you want to be a consistent, then you have to follow discipline, because discipline is what make you to do work in any situation, even when you are in mood of doing it or not. So if you want to be consistent, follow discipline, and for discipline you have to do work in any situation. Like if तुम्हारा मन नहीं है सुबह पढ़ने का, बट अगर तुम डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो तुमको वो रोज़ करना होगा. इवन तुम्हारा मन है सुबह पढ़ने का, नहीं पढ़ना है, तब भी तुमको पढ़ना है. एंड द थिंग यू कैन डू इज़ दैट स्टार्ट बाय 5 to 10 minute स्टडी सेशन एंड आफ्टर दैट ग्रेजुअली इंक्रीज इट, एंड उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी. ठीक है. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट डिस्ट्रैक्शंस अगर कम करने ना तो उसको अपने पास से दूर रखो. अगर तुम फ़ोन टैबलेट से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, सो प्लीज़ उसको बहुत दूर रखो कि तुम्हारी बार बार नज़र ही ना पड़े. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें अंदर से ऐसा लगता है कि अब हमारा टाइम हो गया है फ़ोन देखने का, बट नहीं, उस जगह पर तुम कोई एक्टिविटी ऐसी करो जहाँ पे तुम इंडल्ज रहो, तुमको मज़ा भी आ रहा हो और फिर तुमको फ़ोन देखने की कोई आदत ही ना पड़े, मतलब कोई ज़रूरत ही ना पड़े. एंड तुम एक और चीज़ कर सकते हो दैट इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम फोन, देन
प्लीज़ मेक श्योर टू हाइड ऑल दी एप्स, सारे ऐप्स हाइड कर दो, जो जिससे पढ़ रहे हो उसको ही करो. एंड बाई चांस इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब ना, देन just use your willpower and just stay away and avoid using those shorts or videos you might click sometime. Now the next question is that asked by @Lata Vaibhav, that not taking language subject seriously and it causes problem at the last moment. Yes, it is true, and I will suggest you all, please study grammar and उसको neglect मत करो, क्योंकि उसके बाद आपके नंबर ग्रामर की वजह से ही बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे. एंड यू नो दैट कि पेपर में 20 मार्क्स का ग्रामर आता है, मेरे में तो आता है. और अगर तुम्हारे ग्रामर में नहीं अच्छे आएंगे, सो दैट ऑब्वियसली तुम अपने 15 to 20 मार्क्स तो लूज़ कर ही दोगे. ठीक है, तो इसीलिए तुमको ग्रामर पढ़ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ, एंड पढ़ाई क्या भाई, ग्रामर भी एक पढ़ाई है, हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं एज अ लाइक नहीं ये तो हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे, लेकिन नहीं, वो ब्लंडर क्रिएट करता है लास्ट मोमेंट पे. एंड और उस समय तुमको ये तो एग्ज़ाम के समय इतना पैनिक होता है कि आप खुद ही नहीं समझ पाते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड हम बस वही वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हमें सूटेबल लगता है. तो वो करना बंद करो, क्योंकि कभी कभी वो गलत होता है, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत होता है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी जो हम कर रहे हैं वही सही है. ठीक है, तो यू हैव टू टेक ग्रामर सीरियसली, एंड अगर सीरियसली ले लिए तो लास्ट मोमेंट वो नेग्लेक्ट तुमको ब्लेंडर नहीं क्रिएट करेगा. ओके, एंड आई वांट टू टेल यू दैट हाउ दिस हैज़ डिस्ट्रॉयड माई इंग्लिश पेपर. मैंने इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ी थी, एंड लिटरली आई जस्ट मेस्ड अप इन माई इंग्लिश पेपर ग्रामर सेक्शन. एंड उसका अनसीन पैसेज तो वेरी टफ था, क्योंकि वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर आया था उसके पैसेज, एंड उसके बाद तो लाइक तुम तो जान सकते हो. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं. सो वन क्वेश्चन आस्क्ड बाय @Chetra इज़ दैट, मैं 9th स्टैंडर्ड में जाने वाली हूँ, तो आपके पास कोई ट्रिक्स है कि सारे सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करें. सो इफ़ यू वांट टू मैनेज सब्जेक्ट्स, देन व्हाट यू कैन डू इज़ क्रिएट अ वीकली टाइम टेबल बनाना है. हमें वो नहीं बनाना है कि हमें इतने बजे से इतना करना है, कि हमें क्या क्या पढ़ना है. देखो, हमें पता है कि सारे सब्जेक्ट्स में से हिंदी एंड इंग्लिश थोड़े इजी होते हैं, तो उसको तुम 2 दिन में एक बार पढ़ो. एंड सब्जेक्ट्स लाइक साइंस हो गया, और साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स डेली पढ़ो. मैथ्स को तुम 1.5 आवर और 2 आवर दो, and 1 hour for social science and 1 hour for science. And one thing you can do is कि 1 घंटा तुम हिंदी और इंग्लिश के लिए दे दो, मतलब आधा घंटा हिंदी आधा घंटा इंग्लिश, जो तुमको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ें रिवाइज करते जाना. ठीक है, तो ये था तुम्हारा आंसर. आई होप यू गेट इट. सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई फेवरेट टिप्स फॉर grade 9 which really helped me to score 85+ in my half yearly. अभी तो मेरा फाइनल का रिजल्ट नहीं है, I'll be sharing with you all, बट उसके पहले मैं हाफ ईयरली का बता देती हूँ. तो नाउ I'll be telling you the tips. So first is that जो भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज़ करो. जब भी तुम घर से आओ तुरंत तुमको रिवाइज़ करना है कि आज तुमने क्या क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चंस कौन से लगाए, और ये सारी चीज़ें तुम जितना भी स्कूल में पढ़ो उसको रिवाइज़ करो, क्योंकि वो तुम्हारे फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी. वरना तुम भूल जाओगे वो सारी चीज़ें, एंड उसके बाद तुमको लगेगा ये तो मेरे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं. ठीक है, तो तुम सारा ब्लेम टीचर पर डालोगे. तो इससे अच्छा है कि जैसे स्कूल से आओ वैसे ही रिवाइज कर लो. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टिप इज़ डोंट फॉलो सो मच पब्लिकेशंस. देखो, ज़्यादा पब्लिकेशन की बुक्स लगाने से कुछ नहीं होता है. ऑल यू हैव टू फॉलो इज़ योर NCERT, बिकॉज NCERT इज़ गॉड, एंड तुमको ये बहुत पहले से बताया जा रहा है. तो तुम 1-2 बुक रख सकते हो. जैसे मेरे पास तो कुछ ओल्ड बुक्स थी, मैंने नई बुक्स में सिर्फ और सिर्फ ओसवाल की बुक और PW की बुक ली थी, और मैंने कोई बुक नहीं ली थी, इवन दो NCERT भी नहीं ली थी. So now next thing is that please create a study plan, बिकॉज जब तक आपके पास स्टडी प्लान नहीं होगा ना, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि अब मुझे क्या पढ़ना है. स्टडी प्लान में तुम छोटा सा उसका पार्ट होता है टू डू लिस्ट. तुम रोज़ डेली का टू डू लिस्ट बनाओ, दैट व्हाट टास्क यू हैव टू डू, एंड करके ही सोना है उसे. ये नहीं कि
आधी चीज़ें की और आधी चीज़ें नहीं की, तो उसके बाद आपको रिग्रेट होगा बाद में, ठीक है। तो टू डू लिस्ट बनाना है हमें और अपना रफ टाइम टेबल बनाओ कि रूटीन, बेसिकली स्टैब्लिश आवर रूटीन। दिस इज़ माई फोर्थ टिप फॉर यू ऑल कि स्टैब्लिश करो एक रूटीन, ना कि टाइम टेबल। प्लीज़ डोंट डू मिस्टेक बाय मेकिंग टाइम टेबल्स, ओके। टाइम टेबल नॉट गोना वर्क फॉर यू ऑल बिकॉज इवन दो, क्योंकि मेरे लिए भी काम नहीं किया है। क्यों नहीं काम किया है? क्योंकि देखो, नॉट एवरी डे एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो तुम ज़रूरी थोड़ी कि 8 से 9 तुमको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, क्या पता उस समय तुमको कोई काम आ गया हो तो तुम नहीं पढ़ पाए हो। तो इस वजह से रूटीन बनाओ कि तुम्हारा डेली की चीज़ें फिक्स होनी चाहिए कि डेली हमें क्या करना है, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट 9th क्लास इज़ योर बेसिक क्लास। मतलब कि आप 9th में जो भी पढ़ रहे हो, प्लीज़ डोंट स्टडी फॉर मार्क्स। मतलब नंबर्स के लिए मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपका 11th में काम आएगा। एंड अगर तुमने आज मार्क्स के लिए पढ़ ली ना, तो तुम उसके बाद कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। सो ट्राई टू डू कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, नॉट फॉर जस्ट ओनली मार्क्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इम्पॉर्टेंट टिप इज़ दैट प्लीज़ डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ। अपने ऊपर कोई भी बर्डन मत डालना, क्योंकि देखो, अगर तुम अपने ऊपर बर्डन डालोगे ना तो तुम बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से। एंड तुम अगर दिन भर ये सोचोगे मुझे 95 देन देखो, अगर तुम मतलब इतना प्रेशर मत रखना। जो भी पढ़ो कूल माइंड से पढ़ो एंड फ्री माइंड से पढ़ो, जो चीज़ तुमको समझ में आ रही है समझो, ठीक है। एंड प्लीज़ डोंट अफ्रेड asking questions in your classroom, ठीक है। Have confidence and you can do it. At last I want to say that all the best to all 9th graders. Bye bye, take care, and yeah.